Hello everyone. So today, like in this video, we are talking about chapter 17, that is tax evasion. So this is also like last chapter of our unit first. So in this chapter, basically you have seen so far that we are just talking about the taxes in all the chapters that we have studied, right? Now this last chapter is talks about the tax evasion. So first we understand what tax evasion is. So tax evasion is a illegal act of deliberately avoiding the payment of taxes legally owned by the government. So basically it is more like illegally illegal way से हम जो पेमेंट है टैक्स पेमेंट दैट वी ओ टू द गवर्नमेंट वी आर अवॉइडिंग दैट. Let's say I am earning some 10 lakh rupees or 1 crore rupees or more than that, but I am not telling the government about my income. So I'm like getting that income through some illegal routes, through black economy or shadow economy, whatever it is. So we are not providing the account of our taxable income, and therefore we are not uh, giving the taxes, or we can say like we are avoiding the taxes. That's called tax evasion. So tax evasion का मतलब क्या है कि if government is not able to get the taxes, so there is a loss in revenue to government, and therefore it has become very important necessary कि हम ऐसी theories develop करें that talks about evasion, right? So to design a tax structure that minimize tax evasion and ensure that policy is optimal given that evasion occurs. So wahi, like, because it's a big issues, it happens because of this, the revenue losses of the government is much higher, like very high. So it is becomes very important कि हम ऐसी कुछ theories के साथ आए जहाँ पे कि we can design a tax structure जहाँ पे evasion हमारा minimize हो सके and ensure कर सके कि we are like able to get the optimal amount of revenue or not. But also a very like sometimes it kind of very silly mistake that you do, or very like important thing that you might get confused between the tax evasion and tax avoidance. So tax evasion is a failure to declare taxable activities, and tax avoidance on the other hand is reorganization of economic activity, possibly at some cost to lower the taxable payment. In order to understand it better, so understand कि जो tax avoidance है it's a legal process, whereas the tax evasion is a illegal process. How so? So tax avoidance, CAs जो होते हैं, why do companies hire CAs? वो बेसिकली इसलिए ही हायर करते हैं, और जो हाई इनकम इंडिविजुअल्स होते हैं लाइक big peoples like who are managing the people's like Ambani's account and all. So these people know ways, जो legal ways हैं, there are some loops in the policies, taxes laws, जहाँ पे उनका इस्तेमाल करके we can save our income, like we can save our taxable income basically, or we don't have to give incomes through different exemptions available. कि हम कुछ philanthropy का कुछ काम करते हैं, we just give money to this so and so social activity, then we would be rebated this much amount of the taxes, taxable income हमारा कम हो जाएगा. So there are many ways जहाँ पे कि illegal तरीके से भी like using the loopholes of the laws हम tax को कम कर सकते हैं, like देना. We can avoid tax payments को. In case of a tax evasion, it is not legal, it is illegal. Like we are not showing how much money we are earning, and therefore we are not held accountable, like we are not giving income at all. So it is that we are not declaring our taxable activities. Here in tax avoidance, we government know what we are doing, our income, but we are using our brain to avoid giving taxes in a legal way. So that's it, like for example we're talking about black shadow या फिर black economy होगी, shadow economy होगी. Basically these are those economy जहाँ पे बहुत ज़्यादा illegal activities होती हैं, and these illegal activities when generate income, but they are not declared. Obviously like if we look at drug जो dealing होती हैं, like जो mafias होते हैं,
और जो स्मगलर्स होते हैं और ट्रैफिकर्स होते हैं, दे डोंट डू इट ओपनली, राइट. It is, these are illegal activities, but they do generate incomes from there, and they do not declare their incomes. So they are saving the taxes, right? And that comes under tax evasion. That's it. And national accounts like do not include criminal activities, obviously, so therefore these are not held accountable in the economic activities ki kitni ho rahi hain. So these are kind of seen as a leakages also in the economy. Now if we look about the measurement of tax evasion, so measurement of tax evasion se basically we will look at what are the problems that we face when it comes to measuring the tax evasion. One first problem is the illegality. इलीगलिटी ऑब्वियसली बिकॉज ये इलीगल एक्टिविटीज से जो जनरेट होता है पैसा, इट इज़ इलीगल. लाइक टैक्स इवेशन is comes under, it's like a crime basically. It's a economic crime. It's a legality, and therefore peoples do not wanted to keep it up. Peoples wanted to keep it hidden, these activities. अब ये एक्टिविटीज़ हिडन रहेंगी, सो ऑब्वियसली वी कैन नॉट मेजर कि हाउ मच टैक्स एवेजन इज हैपनिंग, बिकॉज वी डोंट नो अबाउट दी एक्टिविटीज़, वी डोंट नो हाउ मच दीज पीपल्स आर अर्निंग. सो देयरफॉर वी कैन नॉट टेक अकाउंटेबिलिटी कि कितना पैसा कमा रहे हैं. And the second is tax evasion doesn't appear in any official statistic also again. So these are some of the problems in the measurement of tax evasion. And here, like in this text, they are suggested some methods uh, for measuring the tax evasion. One first method is the survey evidence, where this can be basically employed in two ways, like directly or indirectly. डायरेक्टली क्या है कि सर्वे एविडेंस में हम एक सर्वे कंडक्ट कराएं और इसमें हम सबसे पूछें करस्पॉन्डेंट से कि आप कितना पैसे कमाते हो और हाउ मच यू आर पेइंग टैक्सेस एंड ऑल. एंड अनदर इज इनडायरेक्टली में क्या होता है कि ऑब्वियसली लाइक द डायरेक्ट वाला इज़ नॉट वेरी इफेक्टिव बिकॉज पीपल वोंट टेल देयर ट्रू इनकम, बिकॉज उनको टैक्स ज़्यादा देना पड़ेगा. सो इनडायरेक्ट वे है हमारा, लाइक दिस कुड बी फैमिली एक्सपेंडिचर सर्वेज. एंड इसका एक एग्जाम्पल बेसिकली यूके में कंडक्ट हुआ था, सच दिस काइंड ऑफ अ फैमिली एक्सपेंडिचर सर्वे, वेयर सर्वे हुआ था कि लोगों का लाइक दे वर आस्किंग अबाउट देयर एक्सपेंडिचर्स बेसिकली, एंड फ्रॉम एक्सपेंडिचर्स दे ट्राइंग टू इन्फर उनकी इनकम कितनी होगी. लाइक इफ अ पर्सन इज स्पेंडिंग 100 रुपीज़ ऑन रेगुलर बेसिस per month or whatever. So by looking at those trends or those numbers, we're trying to infer, we're trying to predict कि income क्या होगी individuals की, and जो true income है वो individual कितना दिखा रहा है. So that can give us an idea कि कितना हमारा tax evasion हो रहा है. Second method is to inform the extent of the tax evasion or hidden economy. Like अगर हमारी जो total economy की activity है, अगर उसमें से हम जो measured activity है उसको सब्सट्रैक्ट कर दें, देन वी विल गॉट द हिडन इकोनॉमी. उसमें भी दो वेज हैं, लाइक वन इज़ द इनपुट अप्रोच, वन इज़ अनदर वन इज़ द मॉनिटरी अप्रोच. इनपुट अप्रोच में बेसिकली हम वी ऑब्जर्व द यूज़ ऑफ इनपुट्स टू प्रोड्यूस दैट इज़ यूज फॉर द प्रोडक्शन. सो what we are doing, we are trying to predict what output would be. So we are trying to predict output from the input. Okay. And the monetary approach में we are looking for the demand for cash. एक ये like it's a very kind of supposed idea or a assumption के जो ज़्यादा जो illegal activities होती हैं mostly they happen in form of a cash, right? Because transaction history like they can be hidden हो सकती हैं. Like अगर if the payment or the transaction is happening online, so they have a proper records of those transactions and they could be tracked by them. So in order to avoid all these things, most of the people do illegal activities through the offline channels, like through the with the help of cash. So by looking at the demand for cash, we can try to infer about the hidden economy. So this is like looking at the relationship between the demand for cash and the hidden economy. Now, like these are not very solid proof ways to measure the tax evasion, but there are, like there's some kind of a theoretical, so I have discussed it. It is given the starting of your tax. The next section is the tax like evasion decision.
So the estimates of Indian economy have revealed that tax evasion is a significant part of the overall economic activities. So it has become very important. Now we will trying to look at the psychology of those these individuals who do tax evasion के वो ये डिसीजन लेते कैसे हैं, बिकॉज टैक्स एवेशन इज अ क्रिमिनल एक्टिविटी, सो देयर वुड बी पनिशमेंट एज वेल फॉर टैक्स एवेशंस. So how people still go for the tax evasion? So there must be some gains from that tax evasion, and obviously on the other hand there are punishments. So how the individual is decides whether to evade the tax or not? So we are trying to look at the decision. So first we are considering very simple model of a tax evasion. So it is more like a gamble game. So we are considering कि हमारा लेट्स से टैक्स पेयर है, ठीक है, वो हमारा टैक्स पेयर जो है वो इनकम अपनी डिक्लेयर करता है लेस देन हिट्स ट्रू इनकम. Let's say I have a salary of 1 lakh per month, but I am saying to the government, no, I am just earning 50,000 rupees. So मैं जो डिक्लेयर कर रही हूँ इनकम इज़ 50,000, वेर एज माई ट्रू इनकम इज़ 1 lakh. ठीक है, अब यहाँ पे हमारी दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं. इधर I will get caught, it means I would get detected, otherwise I would not get detected or not caught. So if I would, like, let's say if I get caught, so what would happen? I would be worse off than being honest, and the chance of being caught is 1 minus p, and the chance of being not caught or not detected detected is p. And in this case, if I not, if I would not get caught, then I would be better off, क्योंकि नाउ माई इनकम इज शोइंग 50,000 ओनली, तो मुझे टैक्स भी 50,000 के अकॉर्डिंग ही पे करना पड़ेगा. सो आई वुड बी विनिंग इन दैट सिचुएशन, आई वुड बी सेविंग मोर मनी. So in this case, I would be better off. Now the model is such that, like, we are taking y as a true income, that taxpayer's income, but only taxpayer knows this, not the tax collector. And this x is the income that is declared by taxpayer. ओके, दिस इज द टैक्स पेयर जो डिक्लेयर कर रहा है वो इनकम है, वाई हमारी ट्रू इनकम है, एन टी वी आर कंसिडरिंग कि ये टैक्स रेट है ऑन एक्स. सो वाई माइनस एक्स क्या हो गया? दिस इज द अनपेड इनकम, व्हाट आई से अनरिपोर्टेड इनकम. सो वाई हमारी ट्रू थी, हम एक्स बता रहे हैं, तो हमारा इनका जो गैप होगा व्हाट इज दिस, इट इज टेलिंग द अनरिपोर्टेड इनकम. एंड टैक्स रेट इज टी, सो अनपेड टैक्स कितना होगा? टी मल्टीप्लाई बाई दिस गैप, सो दिस इज द अनपेड टैक्स. नाउ हियर दिस इज अवर टैक्स पेयर, ठीक है. अगेन देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग कॉट इज पी, possibility of not being caught is 1 minus p. And if the person is like got caught, then all income is taxed, plus उसको fine भी देना पड़ेगा, plus fine is levied on the tax that has been evaded. ठीक है. So let's say this is the income left, this is the vice is the income left to the person if he get caught. तो वो होगी हमारी total income minus this is the tax that person has to pay on the whole income ty, minus additionally उसको fine भी देना पड़ेगा on the unpaid tax पर. So by arranging, this is our equation, ठीक है. And by using this equation we can also get the utility of the person if he got caught. This is a utility, and this income will occur with probability p. Now we look at the case if that taxpayer like has not get caught, उसकी probability 1 minus p है. अगर वो नहीं पकड़ा गया तो उसकी इनकम इज वाई एन सी, ठीक है. नाउ सो हमने क्या देखा? प्रोबेबिलिटीज़ हैं उसकी पकड़े जाने की और ना पकड़े जाने की, और लाइक ऑफ हिम बीइंग डिटेक्टेड और नॉट डिटेक्टेड, ठीक है. तो देयर इज अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू इट. एंड जब भी हमारी अनसर्टेनिटी होती है, वेन एवर वी हैव अ प्रोबेबिलिटी और अनसर्टेनिटी, वी टॉक अबाउट एक्सपेक्टेड वैल्यू. तो हम यहाँ पे यूटिलिटी देखना चाहते हैं कि उस पर्सन की क्या यूटिलिटी होगी, बट वी हैव अनसर्टेनिटी, वी हैव टू पॉसिबिलिटीज़. सो वी विल ट्राई टू we will look at the expected utility of that person. So now taxpayer will try to choose the income declaration जिससे कि वो अपनी expected utility को maximize कर सके, ठीक है.
तो that person will decide for X level, like X is the declared income, so he will choose declared income such that his expected utility will be maximized, and expected utility is this. So UYC was the utility when he get caught, and UYNC is a utility when he not got caught, and P is the probability, and 1 minus P is, these are the probability with which this utility will be get. तो हमारी इनका जब मल्टीप्लाई करते हैं we will get the expected value. Now we have two extreme values of X. One is X is equal to 0 and X is equal to Y. So basically what we mean by X is equal to 0. X is equal to 0 है कि मिनिमम डिक्लेरेशन, हम यानी कि हम कोई डिक्लेयर ही नहीं कर रहे अपनी इनकम, वी आर सेइंग कि हमारी कोई इनकम ही नहीं है. एंड X इज इक्वल टू वाई मीन कि वी आर डिक्लेयरिंग मैक्सिमम इनकम, यानी कि हमारे जितनी पूरी इनकम है हम उसको पूरा डिक्लेयर कर रहे हैं. सो इन दोनों केसेस में क्या होगा, जब हम पूरी इनकम डिक्लेयर कर रहे हैं, हम कोई इवेजन नहीं कर रहे, सो ऑब्वियसली अगर हम कोई चोरी नहीं कर रहे टैक्स की, तो हमें कोई डर भी नहीं है पकड़े जाने का. सो वी काइंड ऑफ, हमारी जो इनकम होगी आफ्टर टैक्स के बाद, इन बोथ द केसेस वेदर वी विल इफ वी गेट कॉट और नॉट कॉट, ये सेम रहेगी. दैट इज़ हमारी इनकम माइनस जो हम टैक्स देंगे ऑन दिस इनकम, दैट्स इट, राइट. एंड इन केस when we are declaring minimum, or we are not declaring actually anything, so in this case we have two again case, if we caught or if we not caught. So if we got caught, the income would be total income में से we would minus the जो tax on the whole income minus जो fine we would pay on the unpaid tax, right. So by rearranging this, we get this equation. And if we not caught, then in that case क्या होगा, जो पूरी इनकम होगी हमारी वो सेव हो जाएगी, like we don't have to pay any tax. तो हमारी the income would be Y only. Now we will try to look into a graph. हम उसको ना पिक्चर करने की कोशिश करेंगे. So on x-axis we have income level of a person if he not caught, and on the y-axis we have a income level if person get caught, ठीक है. and we have seen कि हमारी there are two possibilities. तो हमारी जो YC की रेंज है, लाइक YC जो वैल्यू कहाँ तक अटेन कर रही है, राइट. एक हमारा था YC इज अटेनिंग दिस वैल्यू एंड अटेनिंग दिस वैल्यू. इन दोनों में से कौन सी वैल्यू इज ग्रेटर, टेल मी. यहाँ पे हम एक्स्ट्रा माइनस कर रहे हैं, तो दिस वुड बी ग्रेटर, राइट. सो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू अटेन फॉर YC, एंड दिस इज इन द केस ऑफ मैक्सिमम डिक्लेरेशन व्हेन अवर X इज इक्वल टू Y. सिमिलरली हमारी जो YNC है उसकी भी दो इनकम्स हैं दैट वी आर गेटिंग एक्सट्रीम वैल्यूज़, दिस एंड दिस. मैक्सिमम कौन सी है हमारी, ये अटेन करेगी YNC, ठीक है, व्हेन X इज इक्वल टू 0. तो हमें ये प्लॉट करनी है. YNC की मैक्सिमम वैल्यू इज Y इज अटेनिंग व्हेन X इज इक्वल टू 0, राइट. इसके साथ हमारा ये पेयर है. एंड YC इज अटेनिंग दिस वैल्यू मैक्सिमम व्हेन X इज इक्वल टू Y, ठीक है. सो दिस इज गिविंग अ लाइन जहाँ पे X इज इक्वल टू 0 है टू X इज इक्वल टू Y. तो बेसिकली हमें डिफरेंट पेयर्स बता रहे हैं इनकम के दैट अ पर्सन कैन अचीव, और दीज आर दी लाइक अचीवेबल और अवेलेबल अपॉर्चुनिटी सेट्स हैं जो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ इनकम लेवल बता रहे हैं पर्सन कैन गेट, ओके. एंड दिस अपॉर्चुनिटी सेट जो है ये इट इज़ मोर लाइक अ बजट कंस्ट्रेंट ओनली, उसी चीज़ का लाइक सेम कॉन्सेप्ट है. एंड नाउ if we would add IC also here, like utility का concept, like the here IC would be telling कि different combination of income level हमें same utility दे रहे हैं. तो अगर हम इन दोनों concepts को मिलाते हैं, budget constraint and income indifference curve, so वो हमारा ये दोनों चीज़ें मिलके decide करेंगे कि टैक्स पेयर की चॉइस क्या होगी, ठीक है. वो हमें सॉल्यूशन देगा. अब सॉल्यूशन हमारे टू टाइप्स के हैं यहाँ पे.
वन इज़ इंटीरियर सॉल्यूशन एंड अनदर वन इज़ अ कॉर्नर सॉल्यूशन. तो हमने ये अभी तक लाइक वी हैव सीन कि हमारा ये बजट कंस्ट्रेन है. ये हमारा x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू वाई तक जा रहा है. अगर x इक्वल टू वाई है तो इट मीन्स देयर इज नो इवेजन, एंड व्हेन x इज इक्वल टू 0 वी आर सेइंग देयर इज अ कंप्लीट इवेजन और फुल इवेजन. ठीक है. तो इंटीरियर सॉल्यूशन कब होगा हमारा इंटीरियर चॉइस? अगर हमारी x जो है इन दोनों के बीच में होती है कहीं पे. लेट्स से देयर इज़ अ पॉइंट x स्टार जहाँ पे हमारी इंडिफरेंस कर्व जो है इज टेंजेंशियल टू दिस बजट कंस्ट्रेंट. So this is our optimal or the solution here. ठीक है. When x star is between 0 to y, and because it is like it is somewhere in between this 0 to y, we are saying that some tax is evaded and some is declared. Okay, it's a pretty much easy. And the second is we have a corner solutions. Corner solutions में दो हमारे cases होंगे. So one case is जहाँ पे हमारा जो इंडिफरेंस कर्व है, यू कैन सी कि इंडिफरेंस कर्व का जो स्लोप है विच इज़ क्रॉसिंग दिस 45 डिग्री लाइन इज काइंड ऑफ लाइक फ्लैटर देन दैट. ठीक है. इट इज़ फ्लैटर. सो व्हेन दिस इज अ फ्लैटर अवर solution is here x star is equal to y when there is a no evasion. So this is the solution and there is no evasion here. And here when we have a full evasion x star is equal to 0, our indifference curve is kind of a steeper here. When it will touch this 45 degree line, we can say it is steeper than this budget constraint. So if that is the case, we are saying there is a full evasion. It means the person has declared no income. So now what is the condition that evasion will occur or not? So condition is कि evasion will occur if IC is steeper than budget constraint where it crosses the dashed 45 degree line. तो जब हमारी IC steeper होगी like this then the budget constraint, तो हमारा when it is crossing 45 degree तो हमारा tax evasion होगा. Right? तो इसको हम थोड़ा मैथमेटिकली टर्म्स में बोल सकते हैं कि जब हमारा स्लोप ऑफ आईसी ग्रेटर होगा देन द स्लोप ऑफ बजट लाइन, इस केस में हमारा इवेजन विल हैपन. ठीक है. एंड स्लोप ऑफ द आईसी इज दिस. इसका डेरिवेशन है बट दैट इज़ नॉट लाइक पार्ट ऑफ योर सिलेबस मच. लाइक यू डोंट नीड टू गो इन टू डिटेल राइट नाउ इन द डेरिवेशंस ऑफ इट, बट कीप इन माइंड कि स्लोप क्या होता है आईसी का एंड बजट कंस्ट्रेंट का. बजट कंस्ट्रेंट का तो यू कैन फाइंड लाइक इट्स प्रिटी ईजी फ्रॉम हियर. मतलब बजट कंस्ट्रेंट का क्या होता है? चेंज इन वाई, स्लोप ऑफ बजट कंस्ट्रेंट, चेंज इन वाई टू चेंज इन एक्स. चेंज इन वाई इज वॉट? चेंज इन वाई सी, एंड चेंज इन एक्स इज वॉट? चेंज इन वाई एन सी. एंड इफ यू विल फाइंड दिस ना, इसका लाइक इफ यू आर सब्सट्रैक्टिंग this from this and divide by change in this, then you will get what? You will get minus f only. So slope of budget line is minus f and slope of IC is this. So if we would solve these, then this is the condition that we are getting that will help us to decide whether evasion is happening or not. So if this p, that is probability of detection, is less than this ratio where f is fine rate, then evasion will happen. Or how we can say it, that evasion will happen or arise if the probability of detection is too small relative to the fine rate. That's it. So now what are the important remarks that we can get from these conditions that we have just read about or studied about? So first, it is a trigger condition that determines whether or not evasion will rise, but it doesn't say anything about the extent of evasion. So first is, it just gives an indication. It gives us whether our evasion is happening or not. So if the probability of detection is too small relative to the fine rate, then we are saying कि evasion हो रहा है, but we are not saying कि how much evasion is happening, right? मतलब कितनी टैक्स की चोरी हो रही है, we cannot say it in absolute terms, but we are saying yes, evasion तो हो रहा है. The second condition is it is dependent only on P and F. हमने देखा किस कंडीशन में क्या वेरिएबल्स थे. लाइक वन इज़ द प्रोबेबिलिटी,
of detection, and another one is the fine rate. So these are the two things that is deciding this condition. That's it. So it means हमारा ये जो है it can apply to all taxpayers regardless of utility of their utilities. So मतलब condition same रहेगी. So if one person is evading, then all will evade also. थर्ड कंडीशन इज़ मोर लाइक अ प्रैक्टिकल. हमने थोड़ा एम्पेरिकली फाइंड आउट करा था कि लाइक नॉट मी बट इन दिस स्टडी कि जो टिपिकल पनिशमेंट इन्फ्लिक्टेड होता है फॉर द टैक्स इवेशन सजेस्ट दैट एन एक्सपेक्टेबल मैग्नीट्यूड फॉर दिस टैक्स इवेशन और द जो फाइन रेट होता है इट्स समवेयर बिटवीन 0.5 to 1 के बीच में होता है फाइन रेट का. देन इट इज़ एक्सेप्टेबल मैग्नीट्यूड है बेसिकली. Now we wanted to determine कि how the amount of tax evasion is being affected by the change in the model's variable. तो हमारे मॉडल में क्या वेरिएबल्स हैं? So there are 4 important variables in our model that we will look कि अगर वो उनमें कुछ चेंज आ रहा है, वेरिएशंस आ रही हैं, then how these variations are basically determining or how these are impacting the amount of tax evasion is happening. So first one variable is income level, another one is tax rate, and another one is the probability of detection, and this one is the fine rate. So first we look at the probability of detection ki how it is impacting. So first look, probability of detection doesn't affect opportunity set. ठीक है, बिकॉज हमारा अपॉर्चुनिटी सेट क्या था? बजट कंस्ट्रेंट था. बजट कंस्ट्रेंट का स्लोप क्या है? बजट कंस्ट्रेंट का इट इज़ -f. इसमें कहीं पे भी p नहीं आ रहा. सो लाइक budget constraint or opportunity set kind of is not impacting with the probability of detection. तो हमारा budget constraint would remain same only. this वही रहेगा that we have just अभी हमने last slide में पढ़ा था अभी. but it does affect the preferences. but ये हमारी preferences को affect करता है probability of detection. ठीक है, क्यों करता है? हमने देखा था ना, preferences is like IC का स्लोप क्या था? IC का स्लोप था -1 - P/P. सो P इज़ देयर राइट. अगर P में कुछ चेंज आएगा, स्लोप इज़ चेंजिंग, IC का स्लोप चेंज हो रहा है, इट मीन्स अब प्रेफरेंसेज आर अफेक्टिंग, प्रेफरेंस चेंज हो रही हैं. दैट्स इट. सो नाउ लेट्स से हाउ दिस इज इम्पैक्टिंग. अगर हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ डिटेक्शन इंक्रीज होता है, दिस इंक्रीज टू लॉट ऑफ एक्सटेंट, देन स्लोप विल डिक्रीज. स्लोप डिक्रीज का मतलब क्या होता है कि अवर दिस स्लोप और द फिगर दैट इज IC इज बीइंग फ्लैटर. ये फ्लैट हो रहा है. फ्लैटर मीन हमें लाइक फ्लैटर कब होता है? व्हेन वी आर गोइंग टुवर्ड दिस x = y की तरफ जाएंगे, राइट? तो हमारा फ्लैटर होगा. सो वी कैन सी देयर इज शिफ्ट इन दिस IC फ्रॉम ओल्ड टू न्यू. तो पहले हमारा जो ऑप्टिमल चॉइस थी टैक्स पेयर की वो E थी. नाउ इट इज़ E-, ऊपर हो गया हमारा, राइट? ये फ्लैटर है, हम दे सकते हैं यहाँ से एक्सिस के कंपैरिजन में. लाइक इट इज़ लाइक दिस, जहाँ पे टच कर रहा है इट इज़ लाइक दिस, राइट? इट इज़ लाइक दिस. सो दिस वन इज़ फ्लैटर. सो इफ दिस इज़ फ्लैटर, दिस विल मूव्स अवर ऑप्टिमल चॉइस क्लोजर टू x = y, एंड वी कैन से कि जो अमाउंट ऑफ इनकम है डिक्लेयर्ड इज राइजेज, एंड सो इंक्रीज इन द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिटेक्शन रिड्यूसेज द लेवल ऑफ एवेशन. इट इज़ गिविंग वेरी अनएम्बिगस, यानी कि बहुत ही सॉलिड हमें आंसर दे रहा है कि अगर हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ डिटेक्शन इंक्रीज होती है तो हमारा टैक्स इवेशन फॉल्स. ओके, एंड नेक्स्ट वेरिएबल इज फिक्स फाइन रेट. we will see how change in fine rate is affecting the tax evasion. So fine rate is what? F. It is only affecting the income when the taxpayer caught evading. Obviously फाइन कब देगा इंडिविजुअल टैक्स पेयर? जब वो पकड़ा जाता है. सो इट इज़ अफेक्टिंग हिज इनकम ओनली देन. बट इट स्टिल लाइक वी नो दैट स्लोप ऑफ अवर बजट कंस्ट्रेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज -f. So we say that f increases, it means what? Slope is becoming more steeper. So look here, like this blue line is for the old budget set, and this red line is showing the new budget set which has become steeper. And f हमारा like if f has increased, तो हमारा this whole income जो like this level income will drop here.
राइट, यहाँ पे था. सो दिस इज़ द पिवोट शिफ्ट दैट वी आर सीइंग इन द न्यू बजट कंस्ट्रेंट. तो हमारा जो IC विल नॉट गेट इफेक्टेड, ओनली हमारा बजट कंस्ट्रेंट अफेक्ट हो रहा है. सो हमारा जैसे एक फाइन इंक्रीज हुआ, सो वी आर सीइंग कि जो हमारा एक्स है, इट हैज़ शिफ्टेड हेयर like somewhere close to this x is equal to y. उसके पास क्या है, तो what we can say कि tax evasion has been is reduced. सो ये भी बहुत ही अनएम्बिगस आंसर दे रहा है कि टैक्स जैसे हमारा फाइनेट इंक्रीज होता है तो हमारा टैक्स इवेजन डिक्रीज हो जाएगा. थर्ड वेरिएबल इज इनकम लेवल. सो हाउ इनकम लेवल इज चेंजिंग, लाइक लेट्स से इनकम लेवल हैज़ चेंज्ड और इंक्रीज्ड एंड बिकम्स वाई हैड. एंड इनकम लेवल का क्या इफेक्ट होगा, बजट कंस्ट्रेंट पे इफेक्ट होगा. बजट विल मूव अपवर्ड, इट इज़ मोर लाइक द इनकम इफेक्ट ओनली. तो हमारा इनकम इफेक्ट जब लाइक इनकम इंक्रीज होती थी तो हमारा बजट लाइन क्या होता था, बजट कंस्ट्रेंट शिफ्ट आउटवर्ड. तो वही सेम यहाँ पे होगा. सो स्लोप इज नॉट चेंजिंग, ओनली देयर इज अ पैरेलल शिफ्ट. So here like this blue line was the old budget constraint, and because of the increase in income level, our budget constraint has moved upward. तो ये हमारी maximum level of income थी that has increased. Similarly हमारा ये भी level increase हो जाएगा, and this also. ठीक है, this also उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा. लाइक दिस है चेंज ना, तो वो यहाँ से हमारा यहाँ पे चेंज हो गया, ये यहाँ से यहाँ पे चेंज हो गया, ये यहाँ से इंक्रीज होके ये लेवल हो गया, वाई से वाई हेड हो गया. सो इट हैज़ जस्ट शिफ्टेड आउटवर्ड. तो पहले हमारा एक्स ओल्ड पे दिस वॉज द ऑप्टिमम लेवल, नाउ ऑप्टिमम लेवल इज दिस. सो वॉट वी आर सेइंग कि इफ विद रिड्यूसिंग एब्सोल्यूट रिस्क एवर्जन, इंक्रीज इन इनकम इंक्रीजेज टैक्स इवेशन. क्योंकि हमारा जो मूवमेंट है इसका एक्स न्यू का इज लाइक मूव अवे फ्रॉम द एक्स इज इक्वल टू वाई, नॉट क्लोज बट अवे. सो एक्स न्यू हैज़ मूव अवे फ्रॉम एक्स इज इक्वल टू वाई. उसकी वजह से वी कैन से कि टैक्स इवेशन हैज़ इंक्रीज्ड. So because of which we can say tax evasion has increased, right? And the fourth is tax rate. How tax rate is impacting? जब टैक्स हमारा रेट इंक्रीज हो जाता है, लेट्स से टू टी हैड, इट मीन्स व्हाट, इट मूव्स बजट कंस्ट्रेंट इनवर्ड. व्हाई सो? सो लुक एट इट, दिस इज द टी हैड, राइट. टी हमारा इंक्रीज हुआ तो 1 माइनस टी क्या होगा, इट विल फॉल. इफ़ दिस फॉल देन 1 माइनस टी इंटू वाई विल ऑल्सो फॉल. तो हमारा पहले मैक्सिमम जो ये यहाँ पे था अब यहाँ पे आ गया, राइट. सिमिलरली ये यहाँ पे आ गया. सो बिकॉज ऑफ दिस शिफ्ट हमारा कैसे हो रहा है, डाउनवर्ड शिफ्ट हो रहा है, राइट, हर जगह. सो वी आर शिफ्टिंग डाउनवर्ड बिकॉज जब हमारा टैक्स में इंक्रीज होने की वजह से क्या हुआ, हमारी काइंड ऑफ डिस्पोजेबल इनकम हैज़ फॉलन. तो जो उसका जो इफेक्ट होगा वो लाइक अपोजिट ही होगा एज कम्पेयर टू फाइन इंक्रीज हो रहा था तो हमारा इनकम इंक्रीज हो रहा था, सो देयर वाज एन अपवर्ड शिफ्ट. बट हेयर टैक्स इंक्रीज हो रहा है तो हमारी जो डिस्पोजेबल इनकम है इट हैज़ रिड्यूस्ड, तो हमारा अपोजिट पैरेलल शिफ्ट होगा, दैट इज़ इनवर्ड. दैट्स इट. एंड नाउ टैक्स इवेशन हैज़ फॉलन बिकॉज जो है लाइक दिस एक्स न्यू हैज़ मूव इन मोर क्लोजर टुवर्ड्स द एक्स इज इक्वल टू वाई. ठीक है, बट these are not very unambiguous, it's depending on lot of things like tax evasion and all. But for say, but one thing I would say, like जो main like जो results हैं and the figures, keep in mind them, like this figures, all these 4 figures is very important. So just keep in mind कि कैसे इफेक्ट हो रहा है, how the budget constraint, and इसमें भी most importantly क्या ध्यान रखना है कि how budget constraint और IC हमारे शिफ्ट या मूव हो रहे हैं. ठीक है, शिफ्ट एंड मूव हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द चेंज इन डिफरेंट फैक्टर्स. It may be your tax rate or the fine rate or the income levels or the probability of detection.
उसकी वजह से हाउ द बजट कंस्ट्रेंट इन दिस आर चेंजिंग, यू विल गेट योर आंसर बाय दैट हाउ इज द टैक्स इवेशन इज हैपनिंग. एंड कीप इन माइंड कि हाउ दिस what this budget constraint is showing and what I see here is showing. That's it. So ये budget constraint is showing हमारी एक तरीके से एक अपॉर्चुनिटी सेट या फिर एक सेट ही दे रहा है. इट्स मोर लाइक अ बजट. ये बता रहा है कि व्हाट आर दी अवेलेबल हमारे पास कॉम्बिनेशंस क्या हैं इनकम लेवल्स के दैट वन पर्सन कैन अचीव. दैट्स इट. वो हमारा x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू वाई है. x इक्वल टू 0 यानी कि वो कोई इनकम डिक्लेयर ही नहीं कर रहा, वो सारी इनकम को लाइक टैक्स को इवेड कर रहा है. एंड x इक्वल टू वाई पे क्या है कि वो सारी इनकम को डिक्लेयर कर रहा है, यानी कि कोई टैक्स इवेजन नहीं कर रहा. दीज आर बोथ टू एक्सट्रीम केसेस. उसके बीच में बहुत सारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं कि दैट पर्सन माइट बी इवेडिंग ओनली 50% ऑफ इनकम, 50% को डिक्लेयर कर रहा है, और 20% हो सकता है, 30%, लाइक द होल रेंज. दैट्स इट, राइट. नेक्स्ट टॉपिक इज ऑडिटिंग एंड द पनिशमेंट. सो हियर अंडरस्टैंड, लाइक एक टैक्स पे क्या कर रहा है. लाइक टैक्स पे इज ट्राइंग टू इवेड टैक्सेस, एंड व्हाट गवर्नमेंट इज डूइंग, or what government can do what, like it can increase the probability of detection by auditing more. का मतलब है कि वो अच्छे से उसको लाइक ऑडिट करे, बेसिकली ट्रांजेक्शन्स को देखे कि हाउ द मनी इज़ मूविंग, हाउ द थिंग्स आर हैपनिंग विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट एजेंसीज के ज़रिए, रेवेन्यू सर्विसेज के ज़रिए. एंड दूसरा क्या कर सकती है गवर्नमेंट कैन इंक्रीज फाइन रेट्स इफ़ इवेजन इज़ डिटेक्टेड. मान लो कि इवेजन हमने डिटेक्ट कर लिया, सो व्हाट गवर्नमेंट कैन डू देन, इट कैन इंक्रीज फाइन रेट. एंड उससे पहले क्या कर सकती है, कैन इंक्रीज प्रोबेबिलिटी ऑफ डिटेक्शन अच्छी सी ऑडिटिंग करके, राइट. एंड यहाँ पे एक चीज़ हमें बहुत लाइक कीप इन माइंड, इट्स मोर लाइक एन अजम्पशन और लाइक इन रियलिटी ऑल्सो, ऑडिटिंग इज़ कॉस्टली. क्योंकि ऑडिटिंग में लाइक पूरी हमें टीम चाहिए, राइट. एक पूरी एजेंसी गवर्नमेंट क्रिएट करती है, रेवेन्यू सर्विसेज हो गई, बहुत सारी चीज़ें हो गई उसमें, लाइक दे आर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, डिफरेंट ऑफिसर्स आर वर्किंग, सो इट नीड लॉट ऑफ मनी टू मेंटेन दैट, right. Apart from government, like lot of external agencies are required to do auditing. And second is raising fine का क्या है, like if the evasion is detected, so a minister or anybody can say कि fine has increased to this. So like they just need to write on a paper. It doesn't need to be very costly or expensive. बहुत ही ईजी होता है, लाइक थ्रू द पॉलिसीज़ को बना के, रूल्स को बना के, इट इज़ इंक्रीज करना फाइन को. इट इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट टास्क, सो इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक कॉस्टलेस टू डू सो. वेयर एज ऑडिटिंग इज़ कॉस्टली बिकॉज यहाँ पे पूरा एक इंस्टीट्यूशन चाहिए हमें, एंड टू मेंटेन दैट इंस्टीट्यूशन इज़ वेरी कॉस्टली. दैट्स इट. नाउ द गवर्नमेंट रिवेन्यू क्या होगा हमारा, गवर्नमेंट रिवेन्यू वुड बी जो टैक्सेबल इनकम है, लाइक टैक्स जो पे करेंगे. दिस वॉज दी डिक्लेयर टैक्स, इस पे हम टी टैक्स रेट है, तो दिस इज़ द टैक्स जो हमारा लाइक पे हो रहा है. एंड प्लस दिस इज़ व्हेन फाइन के साथ, लाइक इफ़ द पर्सन हैज़ अनपेड, सो ये अनपेड टैक्स पे भी दे आर गिविंग फाइन विद द प्रोबेबिलिटी पी के साथ. दैट्स इट. नाउ वी विल सी कि इफेक्ट क्या होता है हमारा अगर हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ डिटेक्शन या प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑडिटिंग बोल सकते हैं हम उसको, अगर वो इंक्रीज करती है. यू कैन सी फ्रॉम दिस इक्वेशन डायरेक्ट हमारा रिलेशन है, रेवेन्यू वुड इंक्रीज. डायरेक्टली कैसे इंक्रीज होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इवेडर्स विल बी गेट कॉट. इनडायरेक्ट इंक्रीज कैसे होगा, पीपल्स विल इवेड लेस, क्योंकि उनको लगेगा कि सिस्टम अच्छा है, राइट. अगर हम कुछ भी थोड़ा बहुत इवेशन का सोचते हैं तो गवर्नमेंट विल कॉट अस एंड लाइक विल कॉट अस ईजीली. तो उसका जो हमें गेन नहीं मिलेगा, वी वुड बी वर्ड्स ऑफ ओनली. हमें फाइन भी देना होगा एंड इनकम टैक्स तो देना ही पड़ेगा. सो वन वे इज़ दैट. So if so let's say, but if P is already very high enough, so there is no evasion. So increasing P in that case would be not effective. Okay. And next is we are looking, if we look at the effect of increase in fine rate, then obviously अगर punishment हमारा बहुत ज़्यादा hard होता है, severe होता है, fine बहुत होता है, so it will discourage evasion. And second, it will increase the revenue, as we can see from the equation also, right. Direct relation है without any cost. So if evasion already exists,
तो हमारा फाइन इंक्रीज़ होने की वजह से रेवेन्यू विल इंक्रीज़। अगर इवेजन कोई नहीं है हमारा, तो ऑब्वियसली फाइन की ज़रूरत नहीं है, तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, नो इफेक्ट। नाउ वी आर वांटेड टू लुक एट द ऑप्टिमल पॉलिसी फॉर रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन। ऑब्वियसली ऑलवेज हमारा गोल क्या होता है, रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करना। तो उसके लिए वी नीड सम काइंड ऑफ अ पॉलिसी, सो वी नीड ऑप्टिमम पॉलिसी दैट कैन मैक्सिमाइज अवर रेवेन्यू। एंड सिंस ऑडिटिंग इज कॉस्टली एंड फाइन्स आर कॉस्टलेस, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट शुड सेट एफ लाइक फाइन रेट एज हाई एज पॉसिबल एंड कैन रिड्यूस पी इनफ सो पीपल आर जस्ट इनडिफरेंट टू इवेडिंग। मतलब पी उतनी इंक्रीज ना हो क्योंकि वो कॉस्टली भी है, तो बस इतनी हो कि पीपल्स जो है इनडिफरेंट रहें टू इवेडिंग, वो इवेड ना करें, राइट। उनके पास कोई इंसेंटिव ना हो इवेड करने का, दे वुड बी जस्ट इनडिफरेंट। और गवर्नमेंट शुड सेट पी एज हाई एज पॉसिबल, क्योंकि हमारा कॉस्ट लेस है, तो उसको इंक्रीज़ करके गवर्नमेंट कैन लाइक रिड्यूस कर सकती है एविएशन को, जो एक क्राइम है, और साइमल्टेनियसली रेवेन्यू को इंक्रीज़ कर सकती है विदाउट एनी कॉस्ट। ठीक है, सो वी विल कॉल्ड इट ज़ीरो इवेजन। इस केस में हम वी आर थिंकिंग कि कोई इवेजन नहीं होगा, क्योंकि हमारा फाइन जो है, पनिशमेंट बहुत ज़्यादा हाई है, एंड पी हमारा लाइक it just like it's not it's just enough to make people like indifferent to evading. So we can say that tax evasion is zero, so this is called zero evasion in theory, and we also given it a name of hanging taxpayer with probability zero. ठीक है, here we are trying to say कि बहुत ही सीवियर पनिशमेंट है एंड बहुत ही लो डिटेक्शन रेट है इधर। Now there comes like idea कि revenue versus welfare, that what we should value more, revenue or welfare. So एक policy that maximize करती है revenue को may not maximize social welfare. Obviously like मतलब it is not given anywhere कि हमारा revenue increase हो रहा है तो इसका मतलब हमारा social welfare increase हो रहा है. It is not like that. So we need बिकॉज लार्ज फाइन हो गया, ठीक है, लार्ज फाइन मीन्स हमारा रेवेन्यू वुड बी हाई। अगर लार्ज फाइन है तो रेवेन्यू इज़ हाई, बट डज इट मीन कि हमारा सोशल वेलफेयर इज इंक्रीज्ड? नो, बिकॉज वी कैन सी लाइक इट कैन क्रिएट लॉट ऑफ हार्डशिप। फाइन बहुत ज़्यादा हो जाता है या फिर हार्डशिप लाइक हमारा पनिशमेंट बहुत हो जाता है, इट कुड क्रिएट हार्डशिप, एंड इट ऑल्सो कुड क्रिएट पॉलिटिकल एंड मोरल प्रॉब्लम्स। इट कैन ऑल्सो लीड टू अनफेयर पनिशमेंट ड्यू टू मिस्टेक्स। ज़रूरी नहीं है, लाइक देयर कैन बी मिस्टेक ऑल्सो इन मीजरिंग कि लाइक इफ पर्सन इज evading और नॉट, लाइक ड्यू टू डिफरेंट एरर मिस्टेक्स। हो सकता है कि देयर इज सम मिस्टेक इन कैलकुलेटिंग एंड ऑडिटिंग एंड ऑल, सो इट कुड लीड टू अनफेयर ट्रीटमेंट, अनफेयर पनिशमेंट ऑल्सो। सो वी कैन फ्रॉम दीज एग्जाम्पल्स लाइक वी कैन से कि सोशल वेलफेयर इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हमारा रेवेन्यू इंक्रीज़ हो रहा है फाइन को बढ़ाने से तो सोशल वेलफेयर इंक्रीज़ हो रहा है। देर आर सेटबैक्स टू इट एज वेल। एंड नाउ अनदर प्रॉब्लम ऑल्सो कि हमारा जो देर इज़ अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स व्हेन वी कमिंग टू द ग्राउंड, when it's time to implement things. So there is a lot of administrative and other kind of problems which make it very hard to implement the optimal policy. That's one thing. And another thing is that if we look at the punishment and crime framework, like we are taking के जो tax evasion है, it's more like a crime only, that is economic crime. And punishment should what? Punishment क्यों होता है? Punishment should create incentives not to commit crime, also be related to the harmfulness of the crime, and more harmful crime should have heavier punishments. दिस इज़ काइंड ऑफ लाइक फ्रेमवर्क दैट वी फॉलो कि हमारा पनिशमेंट कैसा होना चाहिए कि ये इंसेंटिव्स क्रिएट करे कि जैसे हमारे क्राइम्स कमिट ना हो आगे जाके एंड ऑल लाइक, और जितने ज़्यादा हार्मफुल क्राइम्स हों उतना हमें हैवियर पनिशमेंट होना चाहिए इन दैट वे। एंड देयर आर टू रोल्स ऑफ पनिशमेंट एंड फाइन्स. Obviously we have seen that it raises revenue, also it reduces crimes evasions, by reducing the incentives for the people to do so. So optimal policy जो होती है, it should balance the probability like audit probability, fine rates
and cost of enforcement. And this would all happens where we can balance all these when there is a marginal revenue equal to marginal cost. This condition is being fulfilled. And this may occur at a very low probability of detection but with a higher fine. So this is all we talk about, how we can find or do the optimal policy by managing all these things, and how the things is happening, how the tax evasion is affecting by a lot of factors, and so on. Now the last thing we will talk about is the tax compliance game. Tax compliance game or audit game. It is slightly like, if you have studied game theory, it would be very easy for you to understand it. And there are like game theory maybe labels, and like when we have a just a Nash equilibrium kind of a thing, then we move towards more mixed strategy games and all. So that is like very like a little bit technical. So here I will just discuss the very basic concept, basic part of the game theory or the game, which is just a strategic game basically. Okay, and I think this would be suffice for you. Just understand this. So the model here is that it talks about the interaction between taxpayer and the government when there is tax evasion and auditing. So game basically क्या होता है इन जर्नल, लाइक अगर हम सोचें, देर आर डिफरेंट गेम्स जो हम रियल लाइफ में प्ले करते हैं ऑन स्पोर्ट्स, वहाँ पे डिफरेंट प्लेयर्स होते हैं एंड दे इंटरेक्ट, लाइक वो स्ट्रेटजीज बनाते हैं, लाइक अपने अपने जो भी उनके एक्शंस, लाइक दे टेक एक्शंस अकॉर्डिंग टू दैम कि क्या सही होगा, इफ़ आई टेक दिस स्टेप तो दूसरा प्लेयर क्या करेगा. इट्स मोर लाइक लूडो गेम सोच सकते हैं आप, लाइक इट डिपेंड्स ऑन साइमल्टेनियस स्ट्रेटजी बनाना. लाइक टू पीपल्स आर प्लेइंग लूडो, देन एक पर्सन सोचेगा कि लाइक ओके इफ़ आई गॉट 6 दिस टाइम, मैं इस वाली लाइक आई विल प्ले दिस this one, or like if other person get 4, then what he or she would do with that. So we kind of calculated all kind of possibilities कि अगर उसने ये करा तो मैं क्या एक्शन लूँगा, राइट. फिर उसके बाद वो अगर ये लेता है तो मैं क्या एक्शन लूँगा. सो इट्स मोर लाइक दैट स्ट्रेटजिक गेम, राइट. सो जहाँ यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि जो प्लेयर्स होते हैं वो एक साथ लाइक इंटरेक्ट करते हैं. So here also we have two sides, like taxpayer है and another side is a government, and taxpayer decides कि how much income to report and government decides whether to audit or not. ठीक है, and both sides act strategically. So in this game we have like two players, taxpayer है हमारा and government है. गवर्नमेंट की हम कोई एजेंसी ले लेते हैं, लाइक रेवेन्यू सर्विसेज, इट्स गिवन इन योर टैक्स. सो टैक्स पेयर विल चूज बिटवीन इवेजन और नो इवेजन. ठीक है, तो इसको हम लाइक वी कॉल्ड इज स्ट्रेटजी एज वेल. लाइक प्लेयर की दिस टैक्स पेयर हैज़ अ टू प्लान्स और टू स्ट्रेटजी. वन इज़ टू इवेड और नॉट टू इवेड. नॉट इवेजन इज मीन्स ही इज कंप्लाइंग विद द लॉ. सो एंड हिज डिसीजन जो टैक्स पेयर का डिपेंड्स ऑन टैक्स रेट्स पे, फाइन रेट्स पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑडिटिंग पे. ठीक है, एंड दिस इज thinking about it, how he has to play. So this is more like we have studied in the हमने जो ट्री गेम से पढ़ा होगा, like prison वाला, prisoner dilemma. I hope like you all remember. It's a very classic example of game theory and you must have read so far, like in your very initial semesters only. गेम थ्योरी में लाइक एक प्लेयर होता था एंड ही हैज़ टू basically strategies to play, and let's say if he A or B, and if he chooses A, then second player would play and second player have let's say C and D strategies. So if that is the case, what would be the payoff these two individuals? Here would be the payoff of first and here would be the payoff of second individual, like this. Similarly here, राइट. तो कुछ ऐसा हम ट्री बना के देखते थे. सो सिमिलरली हम लेते हैं लाइक अवर फर्स्ट प्लेयर इज टैक्स पेयर दैट इज़ प्लेइंग. उसके पास दो चॉइसेस हैं, इफ़ ही कैन इधर इवेट और नॉट इवेट. अगर वो इवेट कर देता है देन गवर्नमेंट बेसिकली हैज़ लाइक टू थिंग्स, वेदर ही कैन ऑडिट और नॉट. सिमिलरली अगर वो नॉट इवेजन का करता है, इफ इज़ नॉट इवेडिंग, देन ऑल्सो गवर्नमेंट हैज़ टू possibilities or two choices to audit or not to audit. And in this cases we have some payoffs of these two
players. Right, this is what we usually used to do. So now a taxpayer compares gains from evasion and expected penalty. पेनल्टी क्या होगी, फाइन प्लस अनपेड टैक्स होगा with this probability. ठीक है. Now government will choose this probability of detection, and mind you, like auditing was is like costly, so higher probability means more evasion detected, so it will discourage evasion. And governments want to increase revenue, it want to reduce evasion, and wanted to control audit cost. This is the बोल सकते हैं, this is what government wants to. So this is our game, audit game. So on this, here we have a tax player, one player, and here we have second player, that is like player one is tax payer, and the player two is the revenue service. And taxpayer has two choices or two strategies, to evade or not to evade. And similarly revenue service has two strategies or two choices, audit or not audit. ठीक है. So in a case where y is a true income, t is a tax paid, so we are kind of taking lump sum tax, और जो tax हम पूरा pay कर रहे हैं in that sense, and c is the audit cost, and f is a fine. So here look, like if there is no evasion, if person is not evading, ठीक है, वो honest है, if that person is honest, so it doesn't matter ना कि ऑडिट हो रहा है नहीं ऑडिट हो रहा है, उसका जो पे ऑफ होगा वो क्या होगा, उसका पे ऑफ होगा इनकम जो है उसकी माइनस जो उसने टैक्स दे दिया है, तो ये बचा हुआ उसके पास इनकम है, दैट इज़ लाइक हिज पे ऑफ, दैट वुड बी सेम इन बोथ द केसेस. ठीक है, बाई माइनस टी. तो जो पहले वाला है बेसिकली इट इज़ शोइंग द पे ऑफ फॉर प्लेयर फर्स्ट, एंड दिस इज पे ऑफ फॉर प्लेयर टू, सिमिलर केसेस. एंड इसका क्या होगा, लाइक इफ़ नो एविएशन, तो व्हाट वुड बी द पे ऑफ दिस गवर्नमेंट का पे ऑफ होगा टैक्स जो उसको मिला माइनस दी कॉस्ट. ठीक है, एंड इन दिस केस इफ देर इज़ नो ऑडिट तो देर इज़ नो कॉस्ट, जो पूरा टैक्स होगा वुड बी द गवर्नमेंट्स इनकम. ठीक है, टी. एंड सिमिलरली अगर टैक्स पेयर इवेट करता है तो उसका पे ऑफ क्या होगा, इवेट करा उसने एंड ही गेट कॉट ऑडिट, मतलब एंड गवर्नमेंट इज ऑल्सो ऑडिटिंग, सो उसका पे ऑफ हुआ हमारा इनकम में से माइनस जो टैक्स पे करेगा, एंड ऑल्सो फाइन बिकॉज इट ऑडिटिंग है यहाँ पे हमारी, सो फाइन भी देगा वो. एंड गवर्नमेंट का या फिर हमारी एजेंसी का क्या पे ऑफ होगा, टैक्स तो मिला उसके साथ साथ प्लस फाइन and minus cost. And if the person evade and there is no audit, तो उसको फ़ायदा हो जाएगा, like he doesn't have to even pay the taxes, so पूरी income उसकी होगी like y, and because there is like no fine no tax, so उसका जो pay off होगा that would remain zero. And how we used to see for the equilibrium, we used to say कि वी आर सीइंग कि जो हमारी रेवेन्यू सर्विस है वो ऑडिट कर रही है. ठीक है, तो हम इसको फिक्स समझ लेते हैं. सो अगर हमारी रेवेन्यू सर्विस लेट से ऑडिट कर रही है तो टैक्स पेयर का मैक्सिमम जो पे ऑफ कहाँ पे होगा, व्हेन ही इज़ इवेडिंग और नॉट इवेडिंग. व्हेन ही इज़ नॉट इवेडिंग, ठीक है, यहाँ पे होगा. इन केस जब हमारी रेवेन्यू सर्विसेज ऑडिट नहीं कर रही हैं तो टैक्स पेयर हमारा क्या चूज़ करेगा, इवेजन और नॉन इवेजन. इवेजन में इसका पे ऑफ वाई है, नॉन इवेजन में वाई माइनस टी है, विच इज़ ग्रेटर दिस वाई. सो जब हमारा नो ऑडिट है उस केस में अवर टैक्स पेयर वुड चूज़ वाई. ठीक है, एंड सिमिलरली अगर हम कंसिडर करें टैक्स पेयर हमारा इवेड कर रहा है तो गवर्नमेंट का जो पे ऑफ है मैक्सिमम कब होगा, व्हेन ऑडिटिंग और नॉट ऑडिटिंग, बिकॉज हम कंसिडर कर रहे हैं कि जो हमारी टी प्लस एफ है इट इज़ ग्रेटर देन कॉस्ट, और फाइन और टैक्स इज ग्रेटर देन कॉस्ट बेसिकली. सो व्हाट द गवर्नमेंट विल चूज इन दिस केस, विल चूज दिस. ठीक है, एंड इफ देयर इज़ नो एविएशन तो हमारी गवर्नमेंट और एजेंसी क्या चूज़ करेगी, विच वन इज़ गिविंग मोर पे ऑफ, टी माइनस सी और टी राइट. सो दिस इज़ द पे ऑफ. तो हम बोल सकते हैं कि देयर इज़ नो प्योर स्ट्रेटजी इक्विलिब्रियम, यानी कि
it is very like when government trying when wanted to audit, the person will not evade. And when the government is not auditing, the taxpayer will evade, and so forth. तो एक प्योर स्ट्रेटजी इक्विलिब्रियम हमारा नहीं है यहाँ पे. सो इन दोज केसेस हम क्या करते हैं, वी लुक फॉर मिक्स्ड स्ट्रेटजी के लिए देखते हैं. It is a little bit higher, like it's more technical concept and it will take more time to understand it. So I just hope you just leave this, and most probably it will not be asked in the examination because it's like a little bit technical part. So you can just leave it, like these are the equilibrium level of probability of evasion and audit. Like if you can just keep it in mind, just keep it, it will help you, otherwise there is not a issue. So yeah, that's it for this chapter. We have covered it, and thank you very much for watching this video. And